हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत एंड ये वीडियो इस सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 8 है जो सिनेरियो बेस्ड है। एंड इट मीन्स कि ऑल द स्टेटमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे विल बी बेस्ड ऑन सम सिनेरियो और सम कंडीशंस। सो लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So the problem statement is like an intelligence agency has received reports about some threats. The reports consist of number in a mysterious method. Okay, there is a number n and another number r. So we have given two numbers, that is n and r. Okay, those numbers are studied thoroughly and it is concluded that all the digits of the number n are summed up. Okay, जो भी हम लोगों का n रहेगा उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम लोग सम अप करेंगे, सबको सम करेंगे. एंड दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड आर नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, एंड इसी को हम लोग आर नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करेंगे. सो द रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ सिंगल डिजिट दैट इज येट टू बी डेसिफर्ड. द टास्क हेयर इज टू फाइंड द सिंगल डिजिट सम of the given number n by repeating the actions r number of times. Okay, so our task is to find the single digit number, okay, the single digit number of the given number n by repeating this action by r number of times. Now there is a note here that if the value of r is 0, okay, means this value r is 0, then the output should be 0. Okay, this is one of the notable condition. Now let's look the example. So in the example, in the input we have given two numbers, that is 99, the value of n, and 3, the value of r, and the expected output is 9, that is the possible ways to fill. And in the explanation we can see that the number is 99, so the sum of the digit is 9 plus 9 is 18, and we are going to repeat this step, the step 2, r number of times. R is 3, so we are going to repeat this 3 number of times. So 18 plus 18 plus 18, that is 54. And at the end we are expected to have a single digit, so we are going to sum all the digits of the last number. So even after the sum of all the digits of the last number, it may possible कि हम लोगों को दो digits मिले. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर 9 होता एंड यहाँ पर 8 होता, 98, देन 9 प्लस 8 शुड बी 17. सो अगेन वी हैव टू सम द 1 प्लस 7, दैट इज 8. सो हम लोगों को सम तब तक करना होगा जब तक से हम लोगों को सिंगल डिजिट आउटपुट में ना आ जाए. ओके, सो द प्रॉब्लम इज प्रीटी सिंपल एंड आई रिकमेंड कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले खुद एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. आई होप आप लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू द अप्रोच. सो वी आर टेकिंग द सेम एग्जाम्पल एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव दिस आउटपुट as output. So the number is 99. Okay, so our first step should be add all the digits of this number n. Okay, this is the n and this is the r. Okay, so our first approach or first step, step 1, should be sum of all the digits of this n. Okay, that is 9 plus 9, that is 18. Pretty simple. Now the step 2 should be, we are going to multiply. We are not repeating this step again and again r number of times. Instead of this, हम लोगों के पास इससे भी अच्छा अप्रोच है कि हम लोग इसको बार बार परफॉर्म करने के बजाय हम लोग उसको इस सम से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो 9 plus 9 will be performed 3 times. So 9 plus 9 is 18, is multiplied by 3. Okay, it's in the second step. So this will multiplied by r number of times, that is 3 number of times. So it will have 54. So we don't need to perform the step 1 again and again. हम लोगों को उसके रिजल्ट से 3 मल्टीप्लाई कर दे या फिर नंबर ऑफ आर टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दे
तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, इससे हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव हो जाएगा, वो डिपेंडेंट ऑफ आर नहीं रहेगा। ओके, नाउ द स्टेप 3 इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर एट मोस्ट। यहाँ तक तो स्टेप बहुत सिंपल है। ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हम लोगों को बस सम निकालना है एंड जितना भी सम है उसको हम लोगों को आर से मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि वी हैव द 54। ओके, सो वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, सो दैट वी हैव ओनली वन डिजिट एज अ आउटपुट। सो यहाँ पर 5 + 4 इज 9। ओके, 5 + 4 इज 9। तो यहाँ पर तो हम लोगों को एक ही बार में सिंगल डिजिट आउटपुट मिल गया। हाँ, दैट विल बी फाइन कि हम लोगों को ये आंसर हो जाएगा। लेकिन लेट सपोज कि हम लोगों के पास ये जो नंबर है ये हम लोगों को कुछ इस तरीके से आया 7 and 8। ओके, 7 and 8। नाउ अगर हम लोग इस नंबर को, ये स्टेप 3 है ना, स्टेप 3। अब अगर 7 and 8 है और उसको अगर हम लोगों को सम करना है 7 and 8 को, तो ये आएगा 15। ओके, सो रिजल्ट में हम लोगों को अगेन 2 डिजिट ऑफ नंबर मिला। यहाँ पर तो हम लोगों को 1 डिजिट ऑफ नंबर मिल रहा है, बट यहाँ पर हम लोगों को 2 डिजिट ऑफ नंबर मिला। देन वी हैव टू अगेन सम द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर टू गेट ओनली 1 डिजिट ऑफ नंबर। तो हम लोगों को सम तब तक करते जाना है जब तक से हम लोगों को लास्ट में सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। सो 1 + 5 इज 6। ओके, देन ये जो है ये हम लोगों का रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर, नॉट अ डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट और एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो यहाँ तक कोई हम लोगों के पास कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर हम लोग सिंपली डिजिट को सम करेंगे, देन नंबर ऑफ आर टाइम्स हम लोग उसको रिपीट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन जो भी हम लोगों का रिजल्ट आएगा उसके सारे डिजिट्स को हम लोग तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक से हम लोगों का जो आउटपुट है वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। ओके, सो आई होप आप लोगों को डिजिट ट्रावर्सल आता होगा। एंड डिजिट ट्रावर्सिंग के रिगार्डिंग हम लोग एक और प्रॉब्लम इससे भी पहले सॉल्व कर चुके हैं इस सीरीज़ में। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर हम लोग डिजिट ट्रावर्सिंग को इनिशियली से नहीं देखने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वरना आप लोगों को डिजिट ट्रावर्सिंग समझ नहीं आएगा। देन इस डिजिट ट्रावर्सिंग के दौरान हम लोग यहाँ पर अपना जो डिजिट है हर एक को ट्रावर्स करते हुए, हम लोग उल्टे साइड से डिजिट को ट्रावर्स करते हैं, हम लोग ट्रावर्स करते हुए हर एक डिजिट को यहाँ पर सम पे स्टोर करवा लेंगे। ओके, सम। सो लेट्स से हम लोगों का सबसे पहला डिजिट आया 9, तो हम लोग सम पे 9 स्टोर कराएं। देन अगेन हम लोगों का डिजिट आया 9, सो हम लोग 9 को वापस से सम में स्टोर करवा लिए, ऐड करवा लिए। ओके, सो 9 + 9 इज 18। तो सो आवर सम विल बिकम 18। नाउ स्टेप 2 में इसी सम को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई विद द आर नंबर ऑफ टाइम्स। तो सम इज गोइंग टू मल्टीप्लाई द आर नंबर ऑफ टाइम्स so that we will have 54 now। अब इस 54 पे हम लोग एक while लूप लगाएंगे कि जब तक ये जो 54 है, ओके, वो डिवाइड बाय 10 अगर कर दे इसको, दैट इज 5। अभी तो 5 है, एंड अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है, इट मीन्स कि ये जो नंबर है इससे पहले वाला वो डबल डिजिट का नंबर है। जैसे कि अगर ये 9 रहता, 9 डिवाइड बाई 10, तो जावा जो है इसको इंट में पार्स करके 0 देता। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, दैट इज अगर ये 10 रहेगा, सो 10 इज डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स कि ये 0 से बड़ा है। ओके, एंड वी नीड टू फर्दर कैलकुलेट द सम ऑफ दिस डिजिट। ओके, सो इसीलिए हम लोग डिवाइड बाई 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे वाइल कंडीशन के साथ, कि जब तक से मेरा जो सम है या फिर जो भी हम लोगों को वेरिएबल रहेगा या आंसर रहेगा, वो जब तक से मेरा 10 से डिविजिबल होने के बाद 0 से अगर बड़ा है, तब तक हम लोग एक आंसर, लेट से देयर विल बी एन आंसर पे हम लोगों को उसके जो डिजिट का सम है वो स्टोर करा देंगे। लेट से आंसर इज इक्वल टू अगेन 5 + 4। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर हम लोग ये इरेज कर देते हैं,
एंड लास्ट पे हम लोग आंसर को कर देंगे प्रिंट कर देंगे हम लोग अपने आंसर को। सिंपल। अब इफ़ यू नोटिस कि हम लोग जो ये सम है, ओके, ये डिजिट का सम है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग परफॉर्म किए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परफॉर्म किए एंड सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। सो द सम ऑफ डिजिट का जो ऑपरेशन है वो हम लोग मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम लोग अपने सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, हम लोग बार बार एक ही कोड को ना लिख के हम लोग एक मेथड बना लेंगे, ओके, मेथड बना लेंगे जो कि हम लोगों को डिजिट का सम देगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मेथड को ये पास कर देंगे 99, सो इट विल रिटर्न 18, ओके, 9 + 9। एंड इस मेथड को हम लोग यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड हम लोगों को सेम कोड हर बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। सो लेट्स जंप टू आवर कोडिंग कंपाइलर। सो हम लोग आ चुके हैं अपनी कोडिंग कंपाइलर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल बना ले रहे हैं, solution 8.java। ओके, यहाँ पर हम लोग अपना एक क्लास बना ले रहे हैं, क्लास एंड अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनपुट को ले लेंगे एंड एनक्यूटी में बेसिकली अगर सेम टाइप है, इनपुट का डेटा टाइप अगर सेम है, सो द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग कि आप लोग स्कैनर का नेक्स्ट इंट यूज़ कीजिए और नेक्स्ट पर्टिकुलर डेटा टाइप, यहाँ पर हम लोग का क्योंकि इंटीजर है तो हम लोग नेक्स्ट इंट यूज़ कर रहे हैं। अगर कभी डबल का वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू आए तो आप लोग नेक्स्ट डबल यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो अगर कभी भी सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप आए सारे इनपुट का, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द पर्टिकुलर डेडिकेटेड मेथड। अगर कभी हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स आए, जैसे अगर स्ट्रिंग है, देन डबल है, इंटीजर है, देन इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक द इनपुट फ्रॉम sc.nextLine एंड पार्स इन टू द पर्टिकुलर डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ इंटीजर है दोनों, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट इंट यूज़ करने से पहले हम लोगों को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा स्कैनर का क्लास। एंड उसका हम लोग बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग सबसे पहले दो इनपुट ले लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोग के पास एक n होगा एंड एक r होगा। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पर सबसे पहला स्टेप करेंगे जो परफॉर्म करेंगे सम ऑफ द डिजिट ऑफ n। लेकिन क्योंकि हम लोग सम ऑफ डिजिट्स को बार बार परफॉर्म करने वाले हैं तो इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड मेथड बना लेंगे इस क्लास के अंदर। सो हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक एंड क्योंकि सम भी हम लोगों का इंट ही रिटर्न करेगा तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप इसका इंट दे देंगे एंड यहाँ पर हम लोग मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सम ऑफ डिजिट्स लिख दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ये एक नंबर लेगा नम। एंड अगर आप लोगों को डिजिट ओवरसिंग याद हो तो हम लोग यहाँ पर करते थे वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, जब तक ये नंबर 0 से ग्रेटर होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट डिजिट लेते थे, इंट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस ऑफ 10। मॉडुलस से रिमाइंडर आ जाता है, जब हम लोग उसको 10 से डिवाइड करेंगे सो मॉडुलस में रिमाइंडर आ जाएगा एंड दैट विल बी द डिजिट। एंड वहाँ पर हम लोग करते थे अपना ऑपरेशन परफॉर्म। यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को सम करना है तो एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हम लोगों के सम को स्टोर करके रखेगा। देन इसी सम में हम लोग स्टोर करवा देंगे इस डिजिट को। ओके, सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट। नाउ हम लोग कर देंगे नम को अपडेट, नम डिवाइड बाय 10। सो इस तरीके से हम लोग डिजिट को ट्रवर्स भी कर लिए और सम में सारे डिजिट्स के समेशन को रख भी लिए एंड एट लास्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे सम को।
आई होप आप सभी को ये मेथड कम से कम क्लियर हो गया होगा. इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. एंड आई होप आप लोगों को ये मेथड क्लियर हो गया होगा. ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर, जब हम लोग सम को करवाते थे स्टोर. ओके, इसके डिजिट सम को हम लोगों को स्टोर कर लेंगे इस सम में, जो ये रिटर्न करेगा ये मेथड. तो हम लोग कॉल कर लेंगे सम ऑफ डिजिट को एंड उस पर पास कर देंगे हम लोग n. ये n पास कर दे रहे हैं हम लोग इस सम ऑफ डिजिट्स पे एंड ये रिटर्न करेगा इस डिजिट का सम. ओके, सो हम लोगों का पहला स्टेप हो गया क्लियर. अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप में उसको r टाइम्स रिपीट करना था. तो हम लोग क्या कर देंगे, सम ही को मैनिपुलेट कर देंगे. सम इज मल्टीप्लाइड बाय r टाइम्स. ओके, r टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r टाइम से सम को मल्टीप्लाई करके सम ही पे स्टोर करवा ले रहे हैं. ओके, सो आवर सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो हैज़ बिन कंप्लीटेड. अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे. सो थर्ड स्टेप कुछ इस तरीके का होगा कि जब तक से हम लोगों का ये जो सम है, ओके, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से, और डिवाइड करने के बाद भी अगर वो 0 से बड़ा हो, सो ये जो 2 डिजिट नंबर है, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब वो 1 डिजिट का तो नहीं है कम से कम. ओके, 1 डिजिट का नहीं है तो मोर देन 1 डिजिट का कोई भी नंबर है, क्योंकि अगर 1 डिजिट रहता 8, 9, अगर डिवाइड बाई 10 करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आ जाता, नॉट ग्रेटर देन 0 आता. ओके, सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब इसके जितनी भी डिजिट है सम के, उसके सारे डिजिट को हम लोगों को वापस से करना है सम. ओके, और सम पे ही कर दे रहे हैं हम लोग स्टोर, सम को भी अपडेट करना है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सम पे स्टोर करा देंगे सम ऑफ डिजिट्स को. ओके, और सम ही को कर देंगे पास. अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स को कॉल कर रहे हैं. ओके, और इस सम के वैल्यू को दे दे रहे हैं. लेट्स से यहाँ पर 54 है, तो हम लोग यहाँ पर पास कर दिए 54 सम. ओके, नाउ 54 यहाँ से इवेल्युएट होके 5 + 4 ये करेगा रिटर्न 9. ये जो मेथड है सम ऑफ डिजिट, ये रिटर्न करेगा 9 एंड इसी 9 को वापस से होल्ड कर लेगा सम. अगेन जब वाइल लूप चलेगा, सो 9 इज डिवाइड बाई 10 इज 0 इज ग्रेटर देन 0. सो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और वाइल लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक. ओके, एंड हम लोग लास्ट में कर देंगे प्रिंट अपने सम को. ओके, तो सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल. यहाँ पर कर ले रहे हैं हम लोग एक बार इसको एग्जीक्यूट. ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज 99, द सेकेंड नंबर इज 3 एंड आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 9. सो हम लोग और एक बार इसको रन करके देख ले रहे हैं, कोई भी एक अच्छा एग्जाम्पल लेके. लेट सपोज कि हम लोगों के 7 and 5 है, दैट इज 12 एंड लेट्स से हम लोग कर रहे हैं इसको 8 टाइम्स. ओके, 7 12 is multiplied by 8, it will give 96 and 96 is again summed up and 9 plus 6 is equal to 15. 15 will again summed up, 1 plus 5 it will give 6. So this is our expected output. So the code is running very fine. So I hope आप लोगों को ये अप्रोच एंड ये कोड समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, या अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया या फिर कुछ भी पूछना है, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड एज सून एज आई गेट द कमेंट आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग. थैंक यू.